Good morning, dear students. This is our ninth lecture of English Grammar for All, and today our main stress will be upon the exercise. As you know that we have completed the tennis according to structure, and now in future we have to study the usage of the tennis. But today, first of all, we will complete the exercise of the tennis according to structure. I will recapitulate in few seconds about the structure of the tennis. I told you that according to structure, tennis is divided into two types. Number one according to time, number second according to statement. According to time, it is of three types: present, past, and future. According to statement, it is of four types: indefinite or simple, perfect, continuous, and perfect continuous. When we will see that these are in total 12 tenses, that is present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. In this way they are 12 tenses in total. And I have told you that for structure we use two things. That is, for I told you that for identification we use two things, that is verb form and helping verb. In short, I told you that wherever you will see first form, you can say, sir, it is indefinite. Wherever you will see third form, you can say, sir, it is perfect. Whenever you will say fourth form, you will say, sir, it is continuous or it is perfect continuous. Now, if there is since and for, then it is perfect continuous. Then I have told you that since is used at point of time and for is used at period of time. I have also told you that now you will see which is present indefinite, which is past indefinite. For that, you have to see the helping verbs. I told you that in case of present indefinite, helping verb to do and does is used. Past indefinite did. Future indefinite will and shall. Huh? Present perfect has and have. Past perfect had. Future perfect will have, shall have. Present continuous is am are. Past continuous was were. Future continuous will be, shall be. Present perfect continuous has been, have been. Past perfect continuous had been. फ्यूचर परफेक्टनेस विल हैव बीन, शैल हैव बीन. यहां तक आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हाँ, चलो अब हम एक बात करेंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. थोड़ा मैं पहले आपको एक्सरसाइज कहूंगा, फिर आप कहेंगे. टेनिस को मैंने आपको यहाँ इसीलिए ये चार्ट क्यों रखा है, क्योंकि आप जवाब क्विकली दे सकेंगे. हाँ देखो, अब अगर आपके पास पेन कॉपी है, आप उठाओ और लिखो ये सेंटेंसेस, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा. इफ यू हैव पेन एंड कॉपी बिफोर यू, प्लीज take your pen and write these sentences upon your text, upon your notebook. हेलो. हाँ देखो 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 देखो. आई सिंग, ये कौन सा टेनिस है? आई सिंग. वेरी गुड. प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. आई एम सिंगिंग. वेरी गुड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई हैव संग. सिंग, sang, sung. Very good. Present perfect. Very good. I have been singing. Very good. Present perfect. Present perfect continuous. Very good. Very good. He sings. He sings. हमने यहाँ हमने यहाँ एस क्यों लिखा है? वेरी गुड. यानी कि थर्ड पर्सन ही, शी, इट के जब होगा तो उस वक्त वर्ब के साथ एस एस लिखना है. अच्छा, ही इज सिंगिंग.
ही इज सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। देखो कितना आसान है। ही हैज संग, ही हैज संग, वेरी गुड वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। ही हैज बीन सिंगिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, दे सिंग, दे सिंग, हाँ ये सिंग ऐसा है कि ये सिंगिंग नहीं है, ये सिंग है, इसके लास्ट में आई एन जी। आपको लगे कि ये फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म नहीं है। दे सिंग, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड। दे आर सिंगिंग, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ। दे हैव संग, प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव बीन सिंगिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपको कहा अगर आपके पास पेन कलम है तो आप लिख सकेंगे। अगर इस वक्त आप नहीं लिख सकेंगे, मेरी बात समझो, फिर आप जब वॉच करेंगे इसी वीडियो को दूसरे बार, उस वक्त वॉच करने के बाद आपको पॉज करना है। मतलब जहां जहां आपको लगेगी कि पॉज करने की जरूरत है तो आप वहां पास मत, इनको जरूर लिखना है कापी पर। जो भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, जो भी आपको मैंने यहाँ पढ़ाया है, ये मतलब टेबल दिखाया है या रूल्स, वो आपको कापी पर जरूर लिखने हैं। क्योंकि तब आपको याद रहेंगे, क्योंकि अब हर हमेशा वीडियो मत देखेंगे। समझ आ रहा है? आपको फिर से वीडियो देखने हैं और जहां जहां आपको लगेगा वहां पॉज कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है, अगर आपको इसी वक्त टाइम आएगा लिखने के लिए तो लिखो, अगर नहीं आएगा तो फिर इसको फिर से देखना। और मगर ये जरूर, ये एक्सरसाइज किसी कागज पर लिख के रखना, हाँ ठीक है। हाँ बताओ आप मुझे। आई डू, आई डू, क्यों प्रेजेंट सिंपल सर? इसमें तो ये डू जो है, जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है या ये हेल्पिंग वर्ब है? ये मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्यों मेन वर्ब है? वेरी गुड, क्योंकि वहां मेन वर्ब है नहीं। जब मेन वर्ब नहीं होगा उस वक्त हेल्पिंग वर्ब काम करता है एज ए मेन वर्ब, है ना आसान। आई आई एम डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एम, ये आसान है। आई हैव डन, आई हैव डन, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। आई, वेरी गुड, आई हैव बीन डूइंग, वेरी गुड। आप यहाँ डालो टेबल पर नजर, टेबल पर आपको समझ में आएगी ना कि क्या कौन सी फार्म हम इस्तेमाल करते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए ही मैंने यहाँ टेबल रखा है, आपको इजी बनाने के लिए। जब तक तब मतलब आपको याद रहेगा। मैंने आपको पहले ही कहा ये आपको अपनी आंखों में रखना है ये टेबल। हाँ बता मुझे आप। आई सैंग, पास्ट क्यों सर? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो दो टेंसेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। किसके के साथ? प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है सर। इसीलिए यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मगर यहाँ सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट में मैंने आपको कहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। फिर मैंने कहा है कि अब हम कैसे फर्क करेंगे। मिसाल, यहाँ भी आई सिंग है, अगर यहाँ भी हम आई सिंग लिखेंगे तो फर्क क्या है? नहीं, यहाँ पास्ट में ये फर्क है, उसमें सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? मगर ये खाली सेकंड फॉर्म, ये आपको याद रखना है, सेकंड फॉर्म खाली अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होती है, बाकी के साथ नहीं। अगर हम इसका नेगेटिव लिखेंगे उस वक्त सेकंड फॉर्म, उस वक्त फर्स्ट फॉर्म ही। समझ में आ रहा है? आई डू नॉट सिंग, समझ में आ रहा है? हाँ, डू आई सिंग उस वक्त तो फर्स्ट फॉर्म ही, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा फिर से। आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग, वेरी गुड। आई आई वॉज सिंगिंग, पास्ट कंटिन्यूस, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूस, वेरी गुड।
I had I had sung. पास्ट परफेक्ट, क्योंकि उसमें हैड है और थर्ड फॉर्म है। आई हैव बीन सिंगिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। ही sang, सिंग sang। वेरी गुड। पास्ट सिंपल क्यों? सर इसमें हेल्प मोड नहीं है और इसमें सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट सिंपल है। ही वाज सिंगिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूस। हाँ। दे हैड संग। पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट। They they had been singing. Very good. Past perfect continuous. Past perfect continuous. हाँ। और एक they sang. Past is simple. Very good. Past is simple. They were singing. Past continuous है ना, बहुत आसान। अच्छा। they they had sung. Past perfect. Very good. They had been singing. Past perfect continuous. Very good. Very good. I did. Past indefinite. I was doing. Past continuous. हाँ। I have done. Past perfect. Very good. Past perfect. I have been doing. Past per, past perfect continuous. Past perfect continuous. Very good. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect. हाँ, आई हैड। मुझे कहने पे गलत हो गया। आई हैड बीन। हाँ, आई हैड बीन। अगर हैव बीन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। अगर हैड बीन तो वेरी गुड। आई हैड बीन। वेरी गुड। आई विल बी सिंगिंग। आई विल बी सिंगिंग, मैंने कहा आई विल बी सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ। आई विल सिंग। फ्यूचर इंडिकेट। वेरी गुड। आई शैल हैव संग। फ्यूचर परफेक्ट। वेरी गुड। आई शैल हैव बीन सिंगिंग। है ना? कितना आसान है आप, ये है ना? ही विल सिंग। फ्यूचर इंडिफिनिट। वेरी गुड। ही विल बी सिंगिंग। ही विल बी सिंगिंग। फ्यूचर। वेरी गुड। फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी। He will have sung. Future perfect. Future perfect. Very good. He will have been singing. He will have been singing. Future perfect continuous. Very good. Very good. Very good. They will sing. Future indefinite. Yeah, simple. Very good. They will be singing. Very good. Future continuous. They will have sung. नहीं, अभी नहीं करेंगे चार समूह, अभी आपको याद रहने दो, आप फिर करूंगा, नहीं फिर मैं करूंगा। हाँ। They will have been singing.
वेरी गुड, वेरी, हाँ आप तो बहुत काबिल हैं। आई शैल डू, आई शैल डू, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इन, वेरी गुड। आई शैल हैव बीन डूइंग, आई शैल हैव बी डूइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। आई शैल हैव बीन डन, फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव डन, आई शैल हैव डन, शैल हैव और डन थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, दे शैल हैव बीन डूइंग, वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं फिर से आपको यही कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो है ये आपको फिर से देखना पड़ेगा, और जो ये एक्सरसाइज है ये आपको फिर से मतलब करनी पड़ेगी कि क्या मतलब आपको ये समझ में आई या नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? या, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, चल आप मुझे बताओ। हाँ, 1 सेकंड, लास्ट 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट, क्योंकि इससे थोड़ा हम फिर डाइवर्ट होते हैं। लास्ट 5 मिनट, हाँ, 1 सेकंड, अभी मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट है। 1 सेकंड, अभी थोड़ा एक्सरसाइज और करनी है तो। हाँ, तो चलो गया, 1 सेकंड। हाँ, बता मुझे। आई लव, आई लव, हेलो, ये कौन सा टेनिस है? और एक बार याद रखना, हाँ एक बार, 1 सेकंड, एक बात याद हाँ आपको रखना है। आप नेगेटिव माइंड कभी नहीं होना चाहिए, हर हमेशा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। लव मीन्स वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर गॉड, नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, हर हमेशा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ उठाया है। आई लव मीन्स, हाँ कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इन, आई एम लविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। आई हैव लव्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन लविंग, ओके ओके। अच्छा, आई आई विल लव, वेरी गुड, वेरी गुड। आई शैल हैव बीन लविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके ओके ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। आई हैड बीन लविंग, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके ओके ओके। आई हैव लव्ड, आई हैड लव्ड, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और एक उठाएंगे स्पीक पर। आई स्पीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ओके। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, ओके। यू स्पीक, प्रेजेंट सिंपल, ओके। यू आर स्पीकिंग, ओके। ही स्पीक्स, प्रेजेंट सिंपल, वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव स्पोकन, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन स्पीकिंग, present perfect continuous. We have spoken, present perfect, very good. We have been speaking,
Very good. Present perfect continuous. I spoke. Present is past simple. Speak, spoke. Past indefinite. Oh. I was speaking. Past continuous. He spoke. Past simple. Very good. He was speaking. Very good. I had spoken. Past perfect. Very good. I had been speaking. Very good. Past perfect continuous. Very good. Very good. They had spoken. Past perfect. Very good. They had been speaking. Very good. Past perfect continuous. You will speak. Future indefinite. Future indefinite. He will be speaking. Future continuous. Very good. They will speak. Future indefinite. They will be speaking. Future continuous. Very good. Very good. Very good. You will have spoken. Will have. Future perfect. Very good. You will have been speaking. Future perfect continuous. Very good. They will have spoken. Future perfect. Very good. They will have been speaking. वेरी गुड वेरी गुड फ्यूचर परफेक्ट वेरी गुड आपको समझ में आ रहा है अब थोड़ा और एक्सरसाइज करनी है नेगेटिव में मैं देखूंगा आपको समझ में आया आई राइट ये कौन सा सेंटेंस है आई आई राइट राइट हाँ आई डू नॉट राइट आई डू नॉट राइट प्रेजेंट सिंपल मान उसका क्या नेगेटिव वेरी गुड डू आई राइट डू वेरी गुड प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव वेरी गुड आपको तो समझ में आ रहा है आई एम राइटिंग present continuous very good affirmative present continuous affirmative am I writing am I writing present continuous मत कौन सा very good interrogative present interrogative very good I am not writing present continuous negative very good very good very good we have written very good present perfect have we written present perfect मगर कौन सा interrogative we very good we have not written वेरी गुड यानी कि आपको ये भी आ रहा है हाँ समझ में आपको आ रहा है नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी अब मुझे यहाँ यही समझ में आ रहा है अच्छा मुझे आप बताओ आई आई प्लेड आई प्लेड पास्ट इन वेरी गुड अब इसका नेगेटिव बनाओ ओ आई प्लेड उसका नेगेटिव हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट पास्ट इंडिफ में कौन सा इस्तेमाल होता है आई आई डिड नॉट प्ले वेरी गुड आई डिड नॉट प्ले प्ले फिर सेकंड फॉर्म नहीं फिर फर्स्ट फॉर्म क्योंकि मैंने आपको कहा है कि खालिस अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है हाँ उसका ये बताओ इंटरगेटिव बनाओ डिड आई प्ले वेरी गुड यू प्लेड यू प्लेड ये कौन सा है पास्ट इन हाँ इसका नेगेटिव बनाओ
नेगेटिव, यू डिड नॉट प्ले, इसका इंटरोगेटिव, डिड यू प्ले, वेरी गुड वेरी गुड, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका इंटरोगेटिव क्या है? हाँ, वो आई वॉज नॉट प्लेइंग है नेगेटिव, इंटरोगेटिव है वाज आई प्लेइंग, वेरी गुड, दे वर प्लेइंग, ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस, इसका नेगेटिव क्या है? दे वर नॉट प्लेइंग, इंटरोगेटिव क्या है? वाई आर दे प्लेइंग, वेरी गुड वेरी गुड, आई हैड ओपनड, हैड है, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, इसका नेगेटिव क्या है? आई हैड नॉट ओपनड, वेरी गुड, इसका इंटरोगेटिव क्या है? हैड आई ओपनड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी ओपनड, वेरी गुड, आई हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका नेगेटिव क्या है? आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, वेरी गुड वेरी गुड, इसका इंटरोगेटिव क्या है? हैड आई बीन प्लेइंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई शैल डू इट, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका नेगेटिव क्या है? आई शैल नॉट डू इट, वेरी गुड वेरी गुड, इंटरोगेटिव क्या है? शैल आई डू इट, वेरी गुड वेरी गुड, दे विल डू, दे विल डू, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका नेगेटिव क्या है? दे विल नॉट डू, वेरी गुड, इसका इंटरोगेटिव क्या है? विल दे डू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, क्यों, क्यों नहीं? आई शैल हैव बीन डूइंग, आई शैल हैव बीन डूइंग,